This is the question on sentence rearrangement of para jumbles. They will test your ability to interpret the language and arrange in a sequence manner. This is the main objective of the sentence arrangement. Now, what you have to do, you have to first search the introductory sentence. So, suppose A, B, C, D is there, so you have to find out कि which section would be the introductory section. It is a paragraph is divided into 4 sections A, B, C, D. So you have to search for the introductory section. After that, how it progresses, this you have to see. Then you have to reach to the conclusion. So the first sentence says कि tensions between 11 states in South Asia like Brunei, Darussalam, Cambodia. Can you read it? These are the countries of Southeast Asia where the tensions is brewing, is developing. So, after that, China's rise as a regional military power. We know politically that China is developing their capacity, developing their strength, showing their strength. So, China's rise as a regional military power and its claims in the South China Sea have become an increasingly, if he, she is writing well or not, doing well or not. See, since the 1990s, the security environment, what is security environment? सुरक्षा का जो वातावरण है of South Asia has been both continuity and profound changes. बहुत ही बदलता जा रहा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है और ये एक समस्या भी खड़ा कर दिया है और डी में है कि these concerns cause states from outside the region to take an active interest in Southeast Asian security. तो बाहर के जो देश हैं जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है देखने में कि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपस में क्या करें. नेचुरली अगर दो घरों में झगड़ा हो रहा है, दो आदमी अगर सड़क पर लड़ रहे हैं तो लोग ऐसे ही भीड़ जमा देते हैं. तो अपने वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं तो देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम खड़ा हो गया है उसमें बड़ा रुचि ले रहे हैं. अब नाउ थोड़ा सा आप सोचिए कि किसको कौन सा इसमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है. You think C. Okay, very right. C is the right because it is given here at time 1990. So nowhere it is given here is C. Very fine, it is correct. So C is the introductory sentence because it discusses about the tensions. उसके बाद क्या होना चाहिए? डी. बी. बी क्या है? चाइनाज राइज एज ए रीजनल मिलिट्री पावर. इसका मतलब क्या हुआ? शो कर रहा है. यस. तो C is okay, then it comes to B, and after B, A. Why A should come? Because tensions and sometimes conflict remain an issue. ठीक है ना? Very correct. उसके बाद क्या आएगा? नेचुरली लास्ट में बचता है D. तो very good understanding you have got. What's your name? Nishant. Nishant has given reply very nicely and it is 100% correct. It means he has developed by way of practice or by intense reading or deep reading, he has developed the knowledge. So, what are the important things, Sneha? Can you tell me? Introductory sentence or introductory sections is the most important. Then we have to establish the relationship with the introductory sentence.
then finally we will reach to the conclusion. है कि नहीं? So very good, it is correct. Now passage to what is given here. The passage given below is followed by 4 alternative summaries. 4 summaries दिए हुए हैं, right? और क्या कहते हैं? Choose the option that best captures the essence of the passage. इसमें 1, 2, 3, 4 माने ABCD जो दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही कैप्चर करता है इसको? अब देखिए कितना बढ़िया दिया हुआ है. फॉर नियरली ए सेंचुरी मोस्ट साइकोलॉजिस्ट हैव इम्प्रेस्ड वन व्यू ऑफ इंटेलिजेंस. आदमी का जो दिमाग है, जो बुद्धि है, इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट ने एक व्यू बनाया कि इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विथ मोर और लेस इंटेलिजेंस पोटेंशियल. हर आदमी का जो जन्म हुआ है उसका एक अपना लेवल है, पोटेंशियल है, IQ है समझने का. दिस पोटेंशियल इज हैविली इन ज़ैक Z82 इवेंट्स बाय हेरिडिटी एंड डिफिकल्ट टू अल्टर. ये सब आपको वंशज से मिला है कि नहीं? DNA से आपके मिला है एंड इट इज डिफिकल्ट टू अल्टर. और इसको क्या है? बदला नहीं जा सकता है. अगर माता पिता तेज हैं तो बच्चे भी तेज होंगे, अगर माता पिता उतना तेज नहीं है तो बच्चे भी उतना तेज नहीं होंगे. इस तरह का एक साइकोलॉजिस्ट ने अपना एक थ्योरी बनाया. और उसके बाद क्या है? एक्सपर्ट्स इन मेजरमेंट कैन डिटरमाइन ए पर्सन्स इंटेलिजेंस अर्ली इन लाइफ. पता लगा सकते हैं currently from paper and pencil measures perhaps, eventually from examining the brain of action or even scrutinizing his her genome. Recently, criticism of this conventional wisdom. अब देखिए वो भी आप बनाएंगे, उसकी आलोचना भी तो हो सकती है अगर वो सटीक नहीं बैठता है. तो अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म आया है ये परंपरागत विजडम पर. कॉन्वेंशनल विजडम जो आ रहा है कि भाग्य में जो लिखा है, नहीं हम प्राय जो बोलते हैं, लाइक वाइज यहाँ पर दिया हुआ विजडम है हैज माउंटेड. इसकी आलोचना बहुत बढ़ गई है. बात भी बिल्कुल सही है कि भाई कोई जो नहीं है कि एक एजुकेटेड आदमी के लड़के भी एजुकेटेड ही होंगे या एक साधारण आदमी हो उसके लड़के अच्छे बहुत ही बन सकते. अभी तो सब नियम टूट गया है है कि नहीं? जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, जिसमें जितनी इच्छा शक्ति होगी, जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा. इसीलिए क्रिटिसिज्म हुआ इस कन्वेंशनल विजडम का. बायोलॉजिस्ट आस्क इफ स्पीकिंग ऑफ ए सिंगल एंटिटी कॉल्ड इंटेलिजेंस इज कोहेरेंट and questions the measures used to estimate heritability of a traits in humans who not like plants of animal. प्लांट और एनिमल तो नहीं है आदमी कि उसको जैसा हम कंडीशन में रखेंगे उसी कंडीशन में वो पलेगा. ये एक पैराग्राफ का आपको एक नमूना दिया गया है. नाउ यू हैव गॉट 4 एसेंस दिया हुआ है and you have to choose the best essence A, B, C, D. Now you just think कि which should be the best option. इसमें आपको देखना है कि क्या क्या चीज इसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व है. इस पैसेज में क्या क्या पॉइंट्स जो है इन्वॉल्व है. तो इसमें पॉइंट्स इन्वॉल्व ये है कि मेन है ये इंटेलिजेंस, सॉरी मेन क्या है? इंटेलिजेंस पोटेंशियल. इस पर सवाल उठ रहा है और इस पर
लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। यही यही ना मेन थिंग, यही है कि कुछ लोग का कहना है कि ये जो है सो जन्म जन्मांतर की चीज़ है, जैसे माँ बाप होंगे उनके वैसे ही होगा इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन जो इसके ओपोनेंट्स हैं उनका कहना है कि ये कोई कोहेरेंट चीज़ नहीं है कि उससे जुड़ा हुआ है। आप इंटायर उसके इंटेलिजेंस को जोड़ नहीं सकते हैं उसके पूर्वज के एक्टिविटीज से या उसके जो भी बायोलॉजिकल जो उसका ये है फंक्शन से। तो इस आधार पर ये कहता है और ये सपोर्ट भी दे रहा है कि गुलाब का फूल है या देखते हैं ना सीजन पे ही कुछ होता है, कोई फल या कोई फूल होते हैं, तो इसमें कुछ घन चक्कर इसमें आपको डाल सकता है लेकिन उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको खाली पढ़ना है और देखना है कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंस के बारे में जो क्रिटिसाइज किया गया है वो सही है कि गलत है। अब देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने तो कह दिया, साइकोलॉजिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंटेलिजेंस जो है तो वो सब डिपेंड करता है उसके माँ बाप के डीएनए पर या हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन बायोलॉजिस्ट इससे डिसएग्री किया और पहला ऑप्शन है कि बायोलॉजिस्ट हैव क्वेश्चन द लॉन्ग स्टैंडिंग व्यू दैट इंटेलिजेंस इज ए सिंगल एंटिटी एंड द अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इट्स हेरिटेबिलिटी। एक इंटेलिजेंस को उसके हेरिडिटी से हम नहीं तुलना कर सकते हैं। बी में कहता है बायोलॉजिस्ट हैव क्वेश्चन द व्यू दैट इंटेलिजेंस इज ए सिंगल एंटिटी एंड द वेज इन विच व्हाट इज इनहेरिटेड। सी में है बायोलॉजिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड that conventional wisdom that individuals are born with more or less intelligence potential। और डी में है biologists have started questioning psychologist view of intelligence as a measurable immutable characteristic of an individual। Unless you understand, you cannot reach to the conclusion। चूँकि D also refers biologist, C also refers biologist, B also refers biologist, A also refers biologist। लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर बायोलॉजिस्ट का कहना है कि एक ट्रेट्स को हम इंटायर हेरिडिटी से तुलना नहीं कर सकते हैं, यही है ना। तो बी में देखिए पहले स्टार्ट हम लोग नीचे से करते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग साइकोलॉजिस्ट। कहीं पर भी प्रश्न नहीं कर रहा है बायोलॉजिस्ट, प्रश्न नहीं कर रहा है साइकोलॉजिस्ट से, मनोवैज्ञानिक से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। तो ये तो हम पहले ही कर सकते हैं कि ये तो गलत है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट हैव नॉट स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, कहीं भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है स्टार्टिंग है, रिसेंटली क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ है। तो डी तो खत्म हो गया। सी बायोलॉजिस्ट हैव क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करके एंड नहीं किया है, बल्कि क्रिटिसिज्म और बढ़ रहा है, एंड नहीं किया है। और यहाँ पर क्या है, हैव क्रिटिसाइज मतलब कि यहाँ पर एंड कर गया है, नो। तो बी को भी आप नहीं मान सकते हैं। सी पढ़ा है ना, सी को भी आप नहीं मान सकते। हाँ डी बालों से ये कहा है कि पुराने जमाने से जो चला रहा है इंटेलिजेंस का और अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट इज हेरिटेबिलिटी, दिस इज देयर। सो ए इज द राइट आंसर। तो हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे, राइट। और आपने देखा कि जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं वी कैन रीच टू नो वेयर। सो अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनीथिंग। आप अंडरस्टैंड कीजिए और उसका एक लॉजिकल आधार दीजिए कि हाँ ये सही है। अब आइए नंबर 3, देखिए द 4 sentences labeled A, B, C, D below when probably sequenced would yield a coherent paragraph
इसका मतलब है कि अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। डिसाइड कीजिए कि प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ द ऑर्डर। वेरी गुड। अब निशांत ने बहुत अच्छा सॉल्व किया था क्वेश्चन 1 को। तो नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट ए बी सी डी। अब देखिए कि इसमें कैसे इसको हम अरेंज करेंगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सा स्टार्टिंग होना चाहिए? सब लोग स्टार्ट थिंकिंग कि विच वन शुड बी द स्टार्टिंग सेंटेंस। क्योंकि आई हैव टोल्ड यू स्टार्टिंग सेंटेंस मीन्स है कि इट रेजेज द क्यूरियोसिटी। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। तो आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि लिखता है रिलाइंग ऑन ए नैरेटिव स्ट्रक्चर। जो वर्णन करने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड नैरेटिव स्ट्रक्चर। वो जो है एलोन इंडिजीनियस सिग्निफिकेंस ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में सैन folk tales are hard to determine. This is the book, है कि नहीं? उसके बारे में बता रहा है कि बहुत मुश्किल है डिटरमाइन करना कि हाउ इट डेवलप्ड। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रक्चर के द्वारा समझना बड़ा डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है भाई? नाउ लेट अस फाइंड आउट। ये तो हमने पकड़ लिया कि सब्जेक्ट इज देयर, सैन फोकटेल्स, है कि नहीं? अख्तर गेटिंग माई पॉइंट? स्नेहा गेटिंग माई पॉइंट? कि द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम द नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड दे ऑल्सो से कि बहुत हार्ड है डिटरमाइन करना। क्यों हार्ड है डिटरमाइन करना? आपका नेचुरल क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए। है कि नहीं? अब ये जो है कहता है कि इसीलिए डिफिकल्ट है बी हाँ लेट अस सी। अब देखिए यहां पाया कि इट इज हार्ड टू डिटरमाइन। उसका रीजन क्या है? मीनिंग कैन बी एलिसिटेड, माने निकाला जा सकता है। कैसे निकाला सकता है? एंड द टेल्स कॉन्टेक्चुअलाइज्ड बाय प्रोबिंग beneath द नैरेटिव ऑफ verbatim original language records and exploring the connotations of highly significant words and phrases. अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज को एक्सप्लोर कीजिएगा, उसमें जो उच्च स्तर के जो वर्ड्स एंड फ्रेज यूज किए गए हैं उसका अगर आप माने समझते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी सैन फोकटेल्स। अगर कोई हम अंग्रेजी का हम अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, अगर हमने बहुत प्रयास किया उसको अंडरस्टैंड करने का, तो फाइनली वी विल टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग सो दैट वी कैन रीच टू द कंक्लूजन। यहाँ भी वही है, अगर इट इज हार्ड टू डिटरमाइन तो मीनिंग हमको निकालना पड़ेगा। मीनिंग कैन बी एलिसिटेड। बात समझ रहे हैं ना? देन मीनिंग कैन बी एलिसिटेड। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंट्रोडक्टरी पकड़ा, उसके बाद में उसके प्रॉब्लम को लेकर चलना है। लाइक ए डॉक्टर, कौन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्राइब करना, सिम्टम को पकड़ना। तो आपको भी एज ए फिजिशियन, एज ए सर्जन आपको ये करना है। उसके बाद में सेलेक्टेड टेल्स रिवील, जब आप उसका माने क्लियर कर लेते हैं तब आप देखेंगे कि कहानी का कुछ अंश है वो डील करता है विथ ए फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट, कुछ आध्यात्मिक संघर्ष चलता है।
है कि नहीं, रियल संघर्ष चलता है, एंड सोशल इम्प्लीकेशन एंड कंसर्न कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपुल एंड लिविंग और डेड मेलेवोलेंट शैमन्स। सो आपका डिफिकल्ट है, उसका माने समझ गए, और माने समझने के बाद में आप जो है सो ये देख लिया, इसका मतलब है कि आपको सुपरनेचुरल पोटेंसीज ट्रांसेंड द लेवल्स ऑफ सेंस कॉमर्स इन ऑर्डर टू डील विद सोशल, मतलब है कि आपको भी सुपरनेचुरल पोटेंसी निकालना पड़ेगा। किसी भी कठिन चीज को समझने के लिए पहले माने समझना जरूरी है, और माने समझने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े में देखना जरूरी है, और उसके बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि हमको अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपके लिए चैलेंजिंग है, और उस चैलेंज को आपको स्वीकार करना चाहिए। डू गेट माई पॉइंट पीयूष? लाइफ क्या है? चैलेंजिंग है। लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग, और खास करके आज के कॉम्पिटिटिव एज में और कैट में, इम्स में जाना, जहाँ की आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड है, तो थोड़ा सा अगर हम मेहनत करते हैं और बाजी मार लेते हैं तो क्या दिक्कत है? तो प्लीज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। रीडिंग मेक्स ए मैन हार्ट। आप आधा बनिएगा पढ़ करके, लेकिन राइटिंग से ही आप फुल बन सकते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, और यही समय है, इफ यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, चूंकि लैंग्वेज इज नॉट इजी, लेट मी टेक फॉर ग्रांटेड। जब भी मैं निकलता हूँ, जब भी मैं सुनता हूँ, तो यही सुनता हूँ कि हमने फलाना फलाना सब कुछ तो क्लियर कर लिया, और फाइनली आके यहीं पकड़ लटक गए। नो, हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे लड़के बहुत टॉप लेवल पर गए हैं, दे वर वेरी एनर्जेटिक। आपको भी एनर्जेटिक होना पड़ेगा, है कि नहीं? अब आइए 4 में देखिए, फिर आ गया, द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव समरी। पैसेज में 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस। अब मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है सो आज के समय से मूवी और टेलीविजन और फॉरेंसिक टेस्ट, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जजमेंट भी इन्वॉल्व है। इसलिए आपको थोड़ा सा झटपट पढ़िए, तो इसको क्लियरली इसको पढ़िए पूरा यहाँ से यहाँ तक। निशान, you are intelligent, you have solved the first question, so likewise you try to see this question also. Very interesting. अच्छा, कोर्ट में बड़ा वैल्यू दे रहा है फॉरेंसिक टेस्ट का, फॉरेंसिक जजमेंट का। फील एनर्जेटिक, डूब जाइए, चैलेंज ले लीजिए इसको, इट इज ए चैलेंज, ये समझ के आप पढ़िए। देखिए, फॉर इयर्स, बरसों से मूवी और टेलीविजन सीरीज में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को शॉर्ट में लिखा है CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, पेंट एंड अनरियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द साइंस ऑफ वॉइसेस। आजकल साइंस इतना डेवलप कर गया है कि यहीं पर बैठ करके फॉरेंसिक पिक्चर बनाता है और उससे गेस कर लेता है कि जो क्रिमिनल है उसका ऐसा चेहरा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब बैठे बैठे। एक सुपर कंप्यूटर उसमें डाल के उसको वेरीफाई करता है, वो कंफर्म करता है कि हाँ आपका कितना % सही है। अब देखिए, 1994 मूवी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर,
प्रेजेंट कर रहा है क्या, प्रेजेंट डेंजर एक्सपर्ट लिसन्स टू ए ब्रीफ रिकॉर्डेड अटरेंस, मैंने कोई रिकॉर्ड किया हुआ क्रिमिनल का है उसको देखता है CSI और डिक्लेयर करता है कि वो जो है क्यूबन का क्रिमिनल है जिसका एज 35 से 45 के बीच है। साइंटिफिक डेवलपमेंट और एजुकेशन भी उसको मिला ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद क्या हुआ, रिकॉर्डिंग इज फेड टू ए सुपर कंप्यूटर, उससे जो अपर लेवल का जो सेंसिटिव जो है उसमें डाला गया, दैट मैचेज द वॉइस को मैच किया टू दैट ऑफ सस्पेक्ट, concluding that the probability of correct identification is 90%. 90% जो है प्रेडिक्शन जो है ये करेक्ट है कि नहीं। आजकल नैर्कोटिक टेस्ट क्या क्या सब टेस्ट होते हैं ना, जिसका लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है कि आप ह्यूमन ऑर्गन्स या थिंकिंग जो सेल्स है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग। तो खैर लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन वो अपना जो रिसर्च है वो तो चलता ही रहेगा, है कि नहीं। अब उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन को दूर करना साइंस से काम है, दे आर डूइंग। अब सवाल है कि सुपर कंप्यूटर ने कंफर्म कर दिया कि 90% जो है सो सस्पेक्ट का जो है हुलिया सही है। अब आगे क्या कहता है, तो इसका सीक्वेंस सम्स अप ए गुड नंबर ऑफ मिस इम्प्रेशंस, कहता है कि गलतफहमियां भी इसमें हो सकती है अबाउट फॉरेंसिक फोनेटिक्स, ध्वनि पर जो आप पकड़ते हैं इसमें कुछ गलतियां हो सकती है विच हैव लेड टू एरर्स इन रियल लाइफ जस्टिस। अब कोर्ट भी मानने लगा है, तो वास्तविक जीवन में गलतियां हो सकती है। देयर मस्ट बी डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मशीन, ये बहुत जरूरी है। अब क्या है, विच हैव लेड टू द एरर्स इन रियल लाइफ जस्टिस, न्याय देने में भी गलतियां हुई है वास्तविक जीवन में। इंडीड दैट मूवी सीन exemplifies the so called CSI effect, मूवी दर्शाया है द फेनोमेनन इन विच जजेस होल्ड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसमें कि जज जो है निरर्थक उम्मीद करता है कि फॉरेंसिक साइंस सही है। अब आपका क्या विचार है फॉरेंसिक साइंस के बारे में। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको पकड़ने हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट कैप्चर कर रहा है। वॉइस रिकॉग्निशन है स्टार्टेड टू फीचर प्रोमिनेंटली इन क्राइम सीन इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशंस। एक voice recognition as used in many movies to identify criminals has been used to identify criminals in real life also too. Although voice recognition is often presented as evidence in legal cases, its scientific basis can be shaky. Movies and televisions have led to the belief that the use of forensic phonetics in legal investigation is robust and foolproof. है सी आपका अख्तर सी और पीयूष सी आपका सी। अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि सी सही है कि नहीं है। सी में कहता है ध्यान की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आप सही भी हो सकता है आप सही नहीं भी हो। तो लेट अस dissect this section C. Although voice recognition is often presented as evidence, हालांकि वॉइस की पहचान को एक गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इन लीगल केसेस, कानूनी केस में गवाह के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। इट्स साइंटिफिक बेसिस कैन बी शेकी, और इसका वैज्ञानिक आधार गलत भी हो सकता है, शेकी हो सकता है, हिलाने वाला हो सकता है। अब आपको सोचना है कि हमने इसको पकड़ा ये सही कि नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे ये कहा है कि लीगल केस में आप जो है इसे इस्तेमाल करते हैं और ये गलत भी हो सकता है।
ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो गया, क्योंकि इस पैसेज के मुताबिक आपको निर्णय देना है, तब डी होगा। वेरी करेक्ट पीयूष, यस। चूंकि लिखता है कि मूवीज एंड टेलीविजन हैव लेड टू द बिलीफ दैट द यूज ऑफ फॉरेंसिक फोनेटिक्स इन लीगल इन्वेस्टिगेशन इज रोबस्ट एंड फुल प्रूफ, उसके मुताबिक ये फुल प्रूफ है। आपको अपना निर्णय नहीं देना है, यू हैव नॉट टू बी इमोशनल। थैंक यू पीयूष। सो आई गिव थैंक्स वंस टू निशांत फॉर वन क्वेश्चन, और एंडिंग के लिए भी पीयूष को थैंक्स। सो डोंट गेट disheartened, enjoy and take the challenge sportingly. कम्युनिकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चूंकि ग्रीन कार्ड जो है या आपको पास जो मिलेगा वो फाइनली इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, चाहे MBA आप कर लें उसके बाद जो भी है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। सो हाउ डू यू फील, कैसा लगा आपको, है कि नहीं? तो आप सब लोग पढ़िए, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई नई चीज़ों को लेकर के आपके प्रॉब्लम को और सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, है कि नहीं? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आपके थॉट को क्लियर करना, कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको बताना, और इसमें हर सेक्शन हर चैप्टर मज़ेदार है। ग्रामर पोर्शन तो और मज़ेदार है कि हाउ टू फाइंड आउट द एरर्स इन ग्रामर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।